को देख रहे हैं जो अभूतपूर्व बदलाव के बंधन से गुजर रहा है और इस बंधन से प्राप्त अमृत रूपी न्यू इंडिया का साक्षी बन रहा है। एक ऐसा भारत जो हमारे देश के बलिदानियों स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गर्व है। So I would like to invite Divya for their speech. So welcome Divya. Bharat is a unique country in many ways, including its geography, and its location is so that it is situated in the heart of the world. That is Hiriasthana. Lithium can be split as Hra plus Tha plus Yam. Hra meaning Harthi, that is to root out the bad things, and Da meaning Dadati, that is to give back as good, and Yam meaning Yati, that is to revolve around. This is how a heart functions in a body and keeps it as one. This is how Bharat functioned in the past. This is how we should function in the future also. Bharat is a country that is already geographically connected, and we can make this connection stronger by laying down roads and connecting various ports through programs like Sagarmala and Golden Quadrilaterals. Also, the population could be more connected by assuring the population that whenever you go in any part of the country, you still have equal access to all the facilities and still be treated as the children of the country. The population. What an amazing and dynamic population Bharat has. Any country with good population still be empowered with a good human resource. That's why the population of our country is the pride of our nation. That's why the population should be cultured. What is culture? Culture or Sanskrit is something that is born from within. That is born from within. That's why it has got nothing with caste, creed or religion. That's why it needs some more policies like 10% reservation, which is not on the basis of majority, minority or cultural beliefs, which is on the basis of common needs of the people, which took us as one. So when the population is one and the Sanskrit is established, it leads to a good economy. How the biggest problem now Bharat is facing is the economic disparity in the terms of GDP of different states. So when we bridge gap between these two, that even the most impossible thing like tax demonetization and one nation was bringing down. Then most impossible thing like tax demonetization and one nation was bringing down. So when there is equal empowerment for all the states, nobody have any anti-Indian thought. You know about North Rukadet, and you asked me whether is it possible in today's world, and I proudly say yes. And the best example that I can give to you is this annual day celebrating in our school, and how in the past Sankaracharya just started from the south and united the whole nation. My dear brothers and sisters, the whole world is looking at Bharat. You know why? क्योंकि ये नया इंडिया है, ये कहीं घुसेगा भी और मारेगा भी. We go wherever we go, India will strike so hard that the world will never forget us anytime soon. I would like to end my say with the quote: जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीं क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की. जय हिंद, जय भारत.
पर अफसोस राष्ट्रीय त्योहार की अगली सुबह लोग हमें भूल बाकी थोड़ी सी है जिंदगी जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद झंडा ऊंचा रहे हमारा धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है कुछ ऐसा है इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है जय हिंद जय भारत यह पवन परम अनुकूल देख, यह देख भुजा का बल अथाह। तू चले बेड़ियां तोड़कर, रोकेगा आकर कौन रहा। डगमग धरणी पर दमित तेज, सागर पारे सा उठे डोल। उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत माँ के शार्दुल बोल। Honorable Principal Sir, respected teachers and my dear friends, a very great morning to all of you. I'm Dipti from 9th standard speaking on the topic Vocal for Local. Vocal for Local का अर्थ है स्थानीय या स्वदेशी वस्तुओं व उत्पादों को बढ़ावा देना. This initiative aims to encourage each and every citizen of the nation to endorse local and made in India products. Not only by purchasing them, but also by promoting them with pride and dignity. I firmly believe that this initiative would transform India into an economic superpower. But how? The fiscal stimulus of 20 lakh crore has helped MSMEs and local industries restart their businesses after the COVID crisis, potentially providing employment to over 100 million people. With more employment
aggregate demand would increase, leading to increase in production and subsequent increase in our GDP. Thus, a robust startup ecosystem would be created with sustained quality and competitive pricing. Local brands may become national brands, to become global brands, thereby strengthening brand India. This initiative shall have a direct bearing on reducing import dependency and maximizing the exports of those products where India have a competitive advantage, thereby earning foreign exchange. Through this initiative, India can become the center of the global supply chain, and our vision of a $5 trillion economy shall undoubtedly translate into reality. To realize our dream of vocal for local and Atmanirbhar Bharat, I suggest the following: adequate emphasis on education, skill development and training, establishment of production centers and proper infrastructure, incentivization of innovation in R&D, and uses of innovative strategies by local brands for marketing and advertising. Just like our spiritual leaders, we the youth should become the torchbearers of this initiative. Endeavor to preserve our rich cultural heritage and take inspiration from the youth like Hasnas Angmo, the 29 years old Ladakhi who takes local Ladakhi products to an international level. Disha Singh, who promotes local Indian handicraft through her startup, and many, many more. Even through the COVID crisis, the grit and determination of the local enterprises catapulted India towards becoming the second largest manufacturer of PPE, one of the prime exporters of masks and PPE kits. स्वदेशी सिर्फ एक शब्द नहीं, यह हमारी पहचान है। आज जो भी बड़े विदेशी ब्रांड्स हैं, वो भी तो कभी लोकल थे। लोकल पर वोकल होकर ही वो आज बड़े बने। तो क्यों ना हम सब भी यह फॉर्मूला अपनाएं, लोकल पर वोकल होकर भारतीय ब्रांड्स को बड़ा बनाएं, भारतीय संस्कृति को विश्व भर में उजागर करें और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दें। तो आए आज हम सब मिलकर यह दृढ़ संकल्प लें कि एक नए एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। और हमारा यह संकल्प उस दिन पूरा होगा जिस दिन हमारे देश के नेता और उद्योगपति विदेशी ब्रांड्स की गाड़ियों का उपयोग छोड़कर भारतीय ब्रांड्स की गाड़ियों का उपयोग शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Please maintain the discipline. Sit properly and keep silence. Now please welcome Mr. Balwan Sharma. Our school chairman Mr. Kartar Singh, Vice Chairman Mr. Sikandar Kundu. Sir, please come on the stage. Mr. Raman Jaglan. Mr. Amit Balda. उनका हार्दिक अभिनंदन करें। मिस्टर अनिल पालदा, आपने वर्ष 2011 से नॉन मेडिकल में 12वीं की कक्षा किशिकोल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास की। इसके पश्चात आपने YMCA कॉलेज फरीदाबाद से कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक की। आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। 2011 से इन्होंने अपने स्कूल से नॉन मेडिकल में 12वीं की परीक्षा पास की थी। विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसके पश्चात आपने दीनबंधु चटोपाध्याय यूनिवर्सिटी से साइंस और टेक्नोलॉजी मुरथल से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक किया। उसके बाद आपने YMCA फरीदाबाद से एमटेक की। आप 2018 से दिल्ली में TGT कंप्यूटर साइंस के पद पर कार्यरत हैं। रिकॉर्ड को तोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। कपिल बालदा और उनकी टीम को श्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में अपनी शुभकामनाएं देकर ये दौड़ शुरू की, जो कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा आदि से होकर के गुजरी। श्रीमान कपिल बालदा। कुसुम जागरण।
अंजलि खैंची, डॉटर ऑफ धर्मवीर सिंह। आपने विद्यालय से 2017 में 12वीं की कक्षा पास की। आप विद्यालय के बायोलॉजी विभाग के बहुत ही होनहार पढ़ाई पूरी की है। इस दौरान आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के टॉपर रहे हैं। अंजलि खैंची अहर। मनदीप पाठक, आप वर्ष 2009 बैच के विद्यालय के टॉपर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में मैट्रिक कॉलेज से अपनी बीए ऑनर्स की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं रितु देसवाल अटावला। श्रीमान अमित सहराया, आप विद्यालय से वर्ष 2009 बैच के टॉपर। यूजीसी रैंक में 7वां रैंक प्राप्त किया और आप जीआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए। आपने 2018 में 314 रैंक के साथ गेट की परीक्षा पास की। आपने DSSB के द्वारा आयोजित पीजीटी मैथ के पद पर आप फिलहाल दिल्ली में। आपने पंजाब के तरन में हुई पाइका नेशनल में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बेंगलुरु में हुई जूनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आप हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी में पंचकुला में तैनात हैं। श्रीमान धर्मवीर खैंची। के लिए बहुत एक खुशी की बात है, हमारे बीच में प्रसिद्ध समाज सेवी गांव अहर के भूतपूर्व सरपंच बलवान शर्मा जी आए हैं, जो अपनी नेक कमाई में से स्कूल को 10 लाख रुपए का ग्रांट देते हैं। बहुत ही शुभकामनाओं के साथ बधाई के पात्र हैं। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू। Students of class first for their dance. Let's welcome them. नहीं चाहिए वही बीच में। उसको शो करने के लिए आ रहे हैं हमारे प्राइमरी स्टूडेंट्स एनिमल सॉन्ग। एक रह गया। पूरा स्टेज ले ये जो स्टूडेंट क्लास में खड़े हैं बेटा प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सिट डाउन।
दर्द यहाँ का कभी सही सबका पूरा जिसने की प्रेम की बात उसे हमारे सामने लाया जाए हम उसे सब सजा देंगे हमने कहा था ना कि बाजू में ताकत जिसकी जलती है हुकूमत खुद की अरे कल के दुश्मन ताकत पे सारे इतराए रे अरे इधर पलट के देख जरा तेरे बाप में आए रे ओ रामा गजब हुई गवारे रामा गजब हुई गवारे तुम पे गवारे रामा गजब हुई गवारे करिश्मा गजब हुई गवारे रामा गजब हुई गवारे राम भैया बदल जम के कारे लक्ष्मण बलक जम के आज छक्के छुड़ा डालेंगे हमको जीने दो जीने दो जीने दो प्रेम से हमको जीने दो तकलीफ दिल सीने दो Kashmiri culture with Bumro, a Kashmiri dance. So let us welcome the hand group for their dance performance on Bumro. अपना बैठा है Bumra
आप सभी को प्यार, आभार और नमस्कार। बच्चों के इस प्रोग्राम और पेशेंस से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। देखो, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए बच्चे की ऑल अराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे के किसी भी स्टूडेंट्स के बॉडी, हार्ट, माइंड तीनों से कनेक्शन बनाना पड़ता है। बच्चे की बॉडी के लिए इंस्टीट्यूशन में सपोर्ट्स का होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट से ही बच्चे की बॉडी फिट रहती है। आपकी ये संस्था ऋषिकुल स्कूल सबसे पहले इसी पे कार्य किया है। 2012 में बास्केटबॉल को लेके हमने कोच अपॉइंट किए, बच्चे तैयार किए और 2012 से बॉडी पे काम करना शुरू किया। उसमें बच्चों ने काफी अचीवमेंट भी दिए हैं। अभी इसी साल हमने बास्केटबॉल के अलावा एथलेटिक्स कोच रखे हैं और एक बच्चों की टीम तैयार की है, ताकि सभी बच्चों का बॉडी, सबसे पहला पार्ट बॉडी है। हेल्थ है तो सब कुछ है, बाकी बाद की बातें हैं। तो इसमें हमारे कोचेज ने, बच्चों ने काफी अच्छा काम किया है बॉडी पार्ट पे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। स्पोर्ट्स में जो 2012 से हमने बास्केटबॉल स्टार्ट किया, डबल ग्राउंड तैयार किया। 3 साल में ही हमने CBSE टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। हम ऑर्गेनाइज करने के लायक हो गए थे। हमारी टीम नेशनल तक पहुंच गई थी 3 साल में ही। और अभी इस साल का जो रिजल्ट है 2012 से 2022, 10 साल इस ऋषिकुल संस्था के स्टेट लेवल पर 90 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। नेशनल लेवल पर 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया टीम में स्कूल के 3 बच्चे खेले हैं और नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर पोजीशन भी हासिल की है। और जो गेम हमने एथलेटिक्स इसी साल शुरू किया था, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले रेस, एथलेटिक्स में बहुत सारी इवेंट आती हैं। पहले ही साल स्टेट लेवल पर 14 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जिन बच्चों ने पोजीशन हासिल की वो नेशनल लेवल पर खेले हैं, वो 4 बच्चे हैं। CBSE नेशनल हो या स्कूली नेशनल हो। आगे आता है हार्ट, बॉडी, हार्ट, माइंड। हार्ट मीन संस्कार, बच्चे में संस्कृति, धर्म से जुड़ाव, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। इस पार्ट पर भी स्कूल ने बहुत काम किया है। सबसे पहले तो हमने ध्यान रखा कि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, उनमें संस्कार पैदा हो। इसके लिए हमने सुबह प्रतिदिन आर्य समाज दैनिक हवन पद्धति को लागू किया है। प्रतिदिन इसी स्टेज पे सुबह 1 घंटा हवन होता है, जिसमें प्रतिदिन एक क्लास पार्टिसिपेट करती है और ये पूरा वीक चलता है। ये हमने जुलाई 2022 से स्टार्ट कर दिया था। आज हमारे 20% बच्चे
घर पे हवन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हवन पद्धति, संस्कार बच्चों से गायब होते चले जा रहे हैं। तो आज हमारे बच्चे 20% बच्चे हवन कर सकते हैं। इसमें आप सभी अभिभावक की भी सहायता की ज़रूरत होती है। कुछ पेरेंट्स बच्चे के मांगने पर भी हवन कुंड, सामग्री और सामान की व्यवस्था नहीं करते हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप घर में हवन कुंड, सामग्री, जो भी सामान है वो बच्चे के लिए उपलब्ध करवाएं। जिस तरह पतंग बहुत ऊंचाई पे उठती है, यदि उसकी डोर काट दी जाए, डोर कट जाए, अब वो कहाँ गिरेगी? आग में गिरेगी, पानी में गिरेगी या किसी पेड़ पे लटकेगी। वही स्थिति हमारे बच्चे की होती है यदि उसमें, तो हमारा बच्चा भी उसी तरह पता नहीं कहाँ किस देश में जाके लावारिस हमारे से दूर होता चला जाएगा और ये बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए बच्चों को अपने धर्म से, संस्कार से, संस्कृति से जोड़े रखिए। इसमें संस्था लगी हुई है, आप भी बच्चों का सहयोग करें, संस्था का सहयोग करें। ये संस्था 2023 से, अप्रैल 2023 से सेकंड क्लास से ही संस्कृत सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जो कि एक बच्चे को हवन की भाषा, हवन करने में आसानी होगी, अपने शास्त्र, धर्म शास्त्र को पढ़ने में आसानी होगी। दूसरा, राष्ट्रभक्ति, हर बच्चे में राष्ट्रभक्ति का होना बहुत जरूरी है, देशभक्ति का होना बहुत जरूरी है। अन्यथा हम आए दिन सुनते रहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ताकि हमारा बच्चा उसका हिस्सा ना बने। इसलिए हमारी संस्था में, आपकी संस्था में एनसीसी को लाया गया। एनसीसी जो बच्चे, जो कैडेट होते हैं, उनमें से मैक्सिमम या तो आर्मी में ज्वाइन करते हैं, जो भी नहीं करता है उसमें राष्ट्र भावना कूट कूट के भर दी जाती है। जहाँ भी होगा वो देश के लिए काम करेगा। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट बहुत स्कूलों में होता है, लेकिन इसराना ब्लॉक मतलब दूर भी एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अलॉट किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भी सैनिक स्कूल के बाद ऋषिकुल स्कूल में एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है। दूसरा, एनएसएस सेवा, जहां भी रहे, गली में, गांव में, देश में, प्रदेश में, बच्चे में सेवा भाव का होना बहुत जरूरी है। यदि घर में भी रहेगा तो अपने बड़े बुजुर्ग उनकी सेवा भाव तभी करेगा जब उसके अंदर सेवा भाव कूट कूट कर भरी होती है। इसके लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, वो आपके स्कूल में है। इसमें 11-12 के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कैंप अटेंड करते हैं, गांव-गांव में जाके किसी देशभक्त शहीद की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाते हैं, वहां साफ सफाई का काम करते हैं ताकि उनमें सेवा भाव पैदा हो सके। स्काउट 3rd to 12th कोई भी बच्चा ले सकता है। इसमें भी बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। बॉडी, हार्ट से संबंधित ये बातें, ताकि हमारे बच्चों में संस्कार, संस्कृति, राष्ट्र भाव, सेवा भाव, यहाँ संस्था ये काम करती है। दूसरा है फिर माइंड, शिक्षा पे संस्था क्या काम करती है। देखो, इसमें होता है एकेडमिक शिक्षा में कई पार्ट हैं, शिक्षा कई तरह की होती है। इसमें पहला है एकेडमिक में रिजल्ट लगभग हर स्कूल का अच्छा ही आता है, क्योंकि सिलेबस तो करवा ही जाता है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, रिजल्ट सबका अच्छा आता है। लेकिन ये लाइफ में केवल 30% रोल होता है
जिसका एकेडमिक खाली एकेडमिक अच्छा है और वो जीवन में बड़ा बने। देखो स्कूल टॉपर को हम टॉपर नहीं मानते, टॉपर उसको मानते तो जीवन में टॉपर रहता है। जीवन में टॉपर बनने के लिए तो आपका बॉडी, हार्ट, माइंड तीनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। लेकिन माइंड में अपने स्कूल का जो 30% पार्ट है एकेडमिक, तो एकेडमिक रिजल्ट आपने कुछ तो देख ही लिया है। कम से कम 50 ऑफिसर्स आज आए हुए हैं आपके बीच में, 50 ऑफिसर आज आपके बीच में आए हुए हैं। लेकिन लिस्ट 125 की थी, जिनमें 10-15 बच्चे आपके सामने ही प्राइज मोमेंटो इश्यू किया है। ये इन स्टाफ जो टीचर्स है इनकी मेहनत है। देखो बच्चा ब्लैंक होता है, कोई भी चिप है वो ब्लैंक होती है, उसमें जो डाल दिया जाएगा वो डल जाएगा। डालेगा कौन? टीचर, स्टाफ, एनवायरनमेंट। तो आपकी संस्था का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, उससे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो एकेडमिक में जो रिजल्ट है उसमें भी संस्था पीछे नहीं है। अभी इसी साल का 2022 का जो रिजल्ट है, 12th का जो टॉपर बच्चा है वो 96% है। सिमरन शर्मा, जो बलवान शर्मा थे अभी जो गए हैं, समय नहीं था, जिन्होंने खुश होकर इस संस्था को 10 लाख रुपए का दान दिया है। कोई ऐसे नहीं देता। लोग तो कुछ होते हैं कि फीस भी थोड़ी दुखती है, लेकिन वो इतने खुश हैं। उनके 10-12 बच्चे जो परिवार के थे यहाँ पढ़े और सभी ने अच्छा अचीव किया, 90%, 95 खुशी में ही आए थे। वो खुश होके भी आज मेरी संस्था का कोई सेलिब्रेशन है और मैं आज वहाँ जाऊँगा। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम इनवाइट करना भी भूल गए थे। सिर्फ पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स आए थे वो, एज ए पेरेंट्स, लेकिन उनमें खुशी इतनी थी कि मेरी पोतियां पोते यहाँ से, जिस संस्था से, जिस मंदिर से पढ़ के कामयाब होंगे, मेरा उसके लिए कुछ ड्यूटी बनती है। % सेट किया। एकेडमिक में स्टाफ, टीचर्स सभी बहुत मेहनत करते हैं। आगे आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, IIT, JEE, PMT। देखो अब कुछ बच्चे एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, टेस्ट पास करना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, उस पे भी ये संस्था काम कर रही है। पिछले 5 साल से डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक एग्जाम कंडक्ट करता है, VVM, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, जो कि क्लास 6 to 12 कंडक्ट होता है। पिछले 5 साल से हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे उसकी तैयारी करते हैं ताकि बच्चे एग्जाम क्लियर करें। इसके लिए क्लास 6 से ही बच्चों को एलन कोटा का स्टडी मटेरियल पढ़ाया जाता है। लगभग हर क्लास में 6 to 12 लगभग 20, 30, 15 इतने बच्चे तैयारी करते हैं, क्योंकि ये ऐच्छिक है। ऐच्छिक है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसी को पढ़ाया जाता है। हर क्लास में 10, 15, 20 बच्चे एलन कोटा, जो लाखों फीस देकर उन्हीं का ऑनलाइन मंगाते हैं पेरेंट्स या टीचर के थ्रू, और यहाँ वो सिलेबस करवाया जाता है। उसी की बदौलत आज बच्चे PMT, अभी सुबह सुबह एक लड़की मिठाई बांट रही थी, भावना, गांव पठाना से, उसका MBBS में एडमिशन हुआ खानपुर गवर्नमेंट कॉलेज में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई बगैर कोचिंग
सिर्फ सीबीएसई सिलेबस किया उसने, वीवीएम वगैरह जो भी था प्रिपरेशन उसका अपना था। और कोरोना में उसने 1 साल यूट्यूब चैनल से कोई फीस कहीं कुछ नहीं दी और उसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, हमने इनवाइट भी किए हैं। मैं नाम लूँगा तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। नाम और इनाम उनका यहाँ दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। जो अभी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है NEP 2020, अपना स्कूल इस पर स्किल एजुकेशन, रोबोट बनाना सीखते हैं। और आजकल आप देखते हो घर में बच्चा कभी आप बिठा लो अपने सामने, वो आराम से बैठता नहीं है, कभी इधर झांकेगा कभी उधर झांकेगा, कभी मोबाइल लेगा, मोबाइल ले लो तो वो बैठेगा नहीं। यानी कि आज बच्चों की कंसंट्रेशन गायब है। उसके लिए अटल टिंकरिंग लैब बेस्ट ऑप्शन है। बच्चा कुछ न कुछ टाइट करेगा, खोलेगा तो बच्चे की कंसंट्रेशन डेवलप होती है। एजुकेशन पे ही इसी को आगे बढ़ाते हुए स्किल हब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कूल का नाम मांगा गया है। स्कूल ने एक बिल्डिंग प्रोवाइड करवा दी है। उन्होंने लगभग 1500 स्क्वायर फीट एरिया मांगा था, हमने दे दिया है, फाइल दे दी है। और वो वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करेगा उसको, वर्ल्ड बैंक, ताकि ये स्किल हब बने। क्योंकि जो अटल टिंकरिंग लैब में जो भी बच्चे बनाते हैं उसको अपलोड करना पड़ता है साइट पे। उन्होंने साइट बनाई हुई है। ATL ऑफ द मंथ, इस मंथ में किस स्कूल की एक्टिविटी बढ़िया थी, तो साल में कम से कम 3 बार ATL ऑफ द मंथ में आपके स्कूल का नाम आता है। इसी से स्किल हब बनाने के लिए स्कूल का नाम मांगा गया, बिल्डिंग मांगी गई और स्कूल ने अप्लाई कर दिया है। वो बहुत जल्द आपके बीच में होगी स्किल हब, और वो वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करेगा। ये तो आज़ादी से पहले भी जाते थे। सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी, इन्होंने विदेश से ही शिक्षा ली थी। ये कोई बुराई नहीं है कि बच्चे बाहर भाग रहे हैं। देखो आज सारा वर्ल्ड एक गांव की तरह है, एक स्टेट की तरह है, कोई दूर नहीं है। तो उच्च शिक्षा के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, कोई बात नहीं है। हमने इस पे भी काम किया कि भी जो बच्चे हमारे बाहर जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब साल से फर्स्ट पीरियड PDP का लगाया हुआ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पीरियड, जिसमें बच्चा लिसनिंग, रीडिंग, देखो बाहर जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज है, उसके डेवलप के लिए फर्स्ट पीरियड PDP का लगाया हुआ है पिछले 5 साल से। और जिसके कारण आज हमारा 80 to 90% बच्चा जो भी आईलेट्स के लिए ट्राई करता है, फर्स्ट टाइम में ही आईलेट्स क्लियर कर देता है। और तुरंत वो, क्योंकि मैं बहुत मिठाई खा चुका हूँ यहाँ ऑफिस में, जैसे ही आईलेट्स क्लियर होता है बच्चा मिठाई लेके ऑफिस में जरूर आता है। मैं उनसे पूछता हूँ, बेटे और भी है? सर हम 5 थे, कितने का क्लियर हुआ? सर हम 5 का क्लियर हो गया, 4 का पहली बार में ही हो गया था, 1 का दूसरी बार में। तो मैंने हिसाब लगाया 80 to 90% बच्चा इस स्कूल का आईलेट्स फर्स्ट टर्न में ही, फर्स्ट टाइम में ही आईलेट्स क्लियर कर देता है। और भी कौन कहाँ क्या काम करता है, कहाँ ऑफिसर है, कहाँ सेट है, वो आपको पता ही लग जाएगा। बच्चे सर्दी में ठहरे हुए हैं, अभी आए थे टीचर कि वो रेडी है। इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल के हमारे बच्चों की, देखो मैं इनको अपने बच्चे ही मानता हूँ, पेरेंट्स तो आप हैं, हमारे बच्चों की एक्टिविटी देखने के लिए आप बिल्कुल ठंड में समय निकाल के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।